यकीन करना तो है ही मुश्किल, ये सोचना भी सहल नहीं है कि वक्त ऐसा भी था कभी जब ये वक्त पैदा नहीं हुआ था। ये वक्त क्या है? ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था? कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है? ये वक्त क्या है? This was a very important book personally for me, for someone like me who is virtually science illiterate. And therefore, to get this book and to read it was an experience in personal gratitude. And also, I feel privileged that गौहर, पता नहीं क्यों, I don't know, गौहर ने इसके हिंदी संस्करण का प्रीफेस लिखने के लिए मुझसे कहा. So I wrote whatever I could, and Gauhar has included that in the English version also. And it was through this book that I came to know that Gauhar has been pretending all his life that he doesn't know Hindi or cannot write Hindi with confidence. The book, originally written in Hindi, is written in beautiful and very, very understandable and evocative Hindi. Gaur Sahab, at the very outset, I'll say something which I'm going to say in the end also. You have written an exceptional book. It's not a good book, it's an exceptional book. And I hope that it reaches every corner of the world, and all those people who are willing to keep their minds open and eyes open should read this book. It's a very important book. We are living in very, very strange times, funny times. I'm sure that after 100 years or 200 years or maybe earlier, when the teacher in a school will be teaching about 20th century and 21st century to the children of 6th standard, the children will fall off their seats laughing, because something is happening in last 100, 150 years which had never happened in human society. And it is funny. It's really very funny. You see, those who were persecuting and prosecuting Galileo, they were not mad. They were ignorant. Their faith and their information was the same. They knew that earth is flat. They knew that sun goes around the earth. That was their knowledge. That was their faith. So maybe you can call them ignorant, but you can't call them mad. But here's somebody who works in ISRO, who works in NASA, who can send a rocket to Mars for a particular precise location, and after that he is religious. This man is mad. It is like telling the child that you will have to become a doctor. Maybe you want to become a painter, we will not let you become a painter. You are born to become a doctor. आप अगर कोई पेरेंट्स ऐसे मिलेंगे तो आप उनको कहीं क्या कह रहे हो भाई, बच्चा बड़ा हो जाए, खुद डिसीजन लेगा, वो जो चाहेगा करेगा, वो पेंटर बनना चाहता है कि डॉक्टर बनना चाहता है कि इंजीनियर बनना चाहता है, आप उसको चॉइस कहाँ देते हैं? आप में हिम्मत ही नहीं चॉइस देने की। आप एक काम कीजिए, एक बच्चे को पालिए, जब 17-18 साल का लड़का या लड़की हो जाए, उसने कहा बेटा ये 4-5 किताबें हैं इंपॉर्टेंट दुनिया में रिलीजन्स की, पढ़ लो। हाल ही में आई बुक मिथकों से विज्ञान तक बेशुमार मकबूलियत हासिल कर चुकी है। अब इसका इंग्लिश वर्जन लॉन्च हो चुका है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक अजीम तरीन शख्सियत, बेहद खास मेहमान, पोइट, फिल्म मेकर, साइंटिस्ट गौहर आज़म सर। आपका DND प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। कैसा ख्याल आया इसके बारे में? ये और भी ज़बानों में हो रहा है, जैसे गुजराती में, मराठी में, कन्नड़ा में, पंजाबी में, उर्दू में, मलयालम में और ज़बानों में हो रहा है और इसी साल में आ जाएगी। ये लिखने की वजह तो ये थी कि समाज के अंदर जिस तरह से इस बात को लेके कन्फ्यूजन है कि साइंस क्या है और विज्ञान क्या है और धर्म क्या है, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, क्योंकि हर धर्म ये क्लेम करता है कि हमारी किताबों में सारी नॉलेज है। हर धर्म ये क्लेम करता है कि हमारा धर्म सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है
तो ऐसे में एक लाइन खींचना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ साइंस कहलाएगी और ये चीज़ साइंस नहीं कहलाएगी। इसको हम विज्ञान कहेंगे और इसको ज्ञान कहा जा सकता है। कोई खूबसूरत किताब हो सकती है, पर किसी एक किताब के अंदर या 10 किताबों के अंदर ज्ञान सारा नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी जिक्र किया, आप पोइट भी हैं, फिल्म मेकर भी और साइंटिस्ट भी। इन तीनों में देखा है तो इस भूमिकाओं में किस तरह आपको बुक लिखने के लिए मुतासिर किया? मुझे मुतासिर किया लोगों के सवालों ने, और वो सवाल जो मेरे दिमाग में उठ रहे थे, उन सारे सवालों ने इस किताब को लिखने के लिए किया। उसमें जन विज्ञान दत्ता का भी हाथ है, मेरे रिश्तेदारों का भी हाथ है, और मैं कुंभ मेले में 30 साल से हमेशा गया सर्वे करने के लिए। वहाँ जो सवाल पूछे गए लोगों से या लोगों ने हमसे पूछे, उन सब का हाथ। मेरा एक और जहन में सवाल आ रहा है, आखिर मिथ है क्या और समाज में इनकी भूमिका क्या है? मिथ वो एक्सप्लेनेशंस हैं जो पुराने ज़माने में इंसान ने जब सवाल पूछे तो उनके गलत सही जो भी उस वक़्त की नॉलेज थी उसके हिसाब से जवाब दिए। धर्मों ने क्या किया कि इन जवाबों को जमा दिया, और जमाने से ये हुआ कि वो नस्ल दर नस्ल आगे सवाल पूछने से मना कर दिया। तो मिथ हम उसको कहते हैं जो जमा हुआ सच होता है। आज की जो यंगस्टर्स हैं उसमें क्या मिथ की कमी दिखाई देती है और इसको किस तरह से दूर करना चाहिए? नहीं, आज के दौर में समाज में न सिर्फ मिथ्स हैं बल्कि अंधविश्वास है बहुत, और उसको दूर करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आपको यंगस्टर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस तरह से आपका नायाब काम है वो बहुत बेशकीमती है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे देश में नई नस्लें ख्वाब देखें, सवाल पूछें और सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें, बजाय इसके कि वो समाज को पिछली नस्लों की तरफ धक्का दें, पुराने ज्ञान की तरफ धक्का दें। अपने ख्यालात ज़ाहिर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।